Good morning to everyone. This is the sum we will do today. The following are the summary balance sheets of X Limited and Y Limited. Equity share capital is of 10 rupees per share. So 75 lakh, we have 7 lakh under 75 lakh capital. Divide by 10 crore, we will get 7 lakh 50,000 shares. 75 lakh divided by 10 is 7 lakh 50,000. 45 lakh divided by 10, we will get 4 lakh 50,000 shares. We have export profit reserve. It is a statutory reserve. Profit and loss account, general reserve, 12% debentures of rupees 100 each, 5 lakh and 3 lakh. Then we have creditors. Creditors will come here. Creditors are there. Then we have building, machinery, stock, debtor, bank, and we have share issue expense in Y Limited. Now, what they say, Z Limited was formed. So it's a case of pure amalgamation where two companies are getting closed and two old companies getting closed and a new company Z Limited is getting formed. So Z Limited was formed to acquire all assets and liabilities of X Limited and Y Limited on the following terms. Z Limited का ऑथराइज कैपिटल दिया है इस 5 crores divided into 5 lakh equity shares of rupees 100 each. तो यहाँ Z लिमिटेड में एक शेयर 100 रुपीज का रहने वाला है. इन द ओल्ड कंपनी इट वॉज ₹10. The new company, the new shares, purchasing company Z Limited का एक शेयर 100 रुपीज का रहेगा. The business of both companies were taken over for the total price of 1 crore 2 lakhs. 1.2 crores. मतलब पीसी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है that the business of both companies were taken over for a total price of rupees 1.2 crores. लेकिन they have given the amount together. मतलब टोटल पीसी दोनों कंपनीज का मिलाकर इट इज 1.2 crores. दोनों कंपनी का मिलाकर इट इज 1.2 crores to be discharged by Z Limited by issue of equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. मतलब हम लोग जो ये पीसी डिस्चार्ज होगा ये 120 रुपीज के शेयर के साथ होगा. 100 रुपीज शेयर का, 20 रुपीज प्रीमियम का. 100 rupees will be for the share and 20 rupees will be for the premium because 100 ka 20% is 20 rupees. The shareholders of X Limited and Y Limited to get shares in Z Limited in the ratio of net asset value of their respective shares. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को शेयर्स कैसे मिलेगा, नेट असेट वैल्यू के रेशियो से मिलेगा. इसके लिए हमें नेट असेट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे दिया गया है जो शेयर्स एलोकेट होगा, शेयर्स अलॉट होगा दोनों कंपनी को, X Limited and Y Limited will be in the ratio of the net asset. नेट असेट के रेशियो से इनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा. The shareholders of X Limited and Y Limited to get the shares in Z Limited in the ratio of the net asset value. And then they say debentures of both the companies to be converted into equivalent number of 14% debentures. So दोनों कंपनी के जो डिबेंचर्स है उनको इक्विवेलेंट नंबर के, इक्वल नंबर के 14% debentures मिलेगा of ₹100 each in Z Limited at a discount of 10%.
10% का डिस्काउंट के साथ दे विल बी गेटिंग all the tangible assets of both the companies are taken over by Z Limited at book value. मतलब सारा tangible assets है, मतलब tangible asset we have here are taken over by Z Limited at book value except the following. दोनों का नया वैल्यू दिया, बिल्डिंग का भी नया वैल्यू दिया है एंड मशीनरी का भी नया वैल्यू दिया है. बोलते अदर देन दिस टू टैंजिबल असेट्स, बाकी असेट्स विल बी टेकन इन बुक वैल्यू. अदर असेट्स विल बी टेकन इन बुक वैल्यू. Sundry creditors of X Limited and Y Limited are taken over at 6,50,000 and 5 lakh respectively. दोनों का old value 7 lakh and 5,50,000 था. New value of creditors is given 6,50,000 and 5 lakh respectively. Statutory reserves are to be maintained for 3 more years. स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हम 3 और साल के लिए मेंटेन करेंगे. स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन सा है हमारे पास? फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व. स्टैच्यूटरी रिजर्व इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के लिए हमें स्टैच्यूटरी रिजर्व इसको और 3 साल मेंटेन करना है. सो ओके, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का एंट्री पास करना पड़ेगा. And then what we will do, they are telling us to, you are required to compute the PC of X Limited, Y Limited, and you have to pass journal entries in the purchasing company. Z Limited का journal entry pass करना है, and we have to prepare balance sheet after amalgamation, apply purchase method. So let us start this solution. Let us start the solution. सबसे पहले तो PC कैलकुलेट करने बोला है. So calculation of PC. वैसे तो परचेज कंसिडरेशन टोटल कंपनी का दिया है 1.2 करोड़, लेकिन इसको कैसे डिवाइड करना है ऑन द रेशियो ऑफ नेट एसेट वैल्यू. तो हमें कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में पहले तो नेट एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले तो we will have to find out the net asset. So let us calculate particulars X Limited, Y Limited and total जो Z Limited की में assets जाएगा. So that we can find out now. Particulars, let us adjust the amount column. So particulars X Limited, Y Limited एंड टोटल जो भी ये दोनों कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करके फॉर्म हो गया Z लिमिटेड. गेटिंग द पॉइंट. X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड के सारे असेट्स को टेक ओवर करके Z लिमिटेड हैज बीन फॉर्म्ड. सो व्हाट वी वांट द असेट्स टेकन ओवर. ऑल द असेट्स आर टेकन ओवर. तो असेट्स टेकन ओवर जो भी है हमें वो चाहिए. assets taken over by Z Limited in, if revise is given we will take revise, otherwise we'll take the book value. So हमारे पास कौन सा asset है. What we will do, let us take all of them, but share issue expenses को नहीं लेंगे because वो तो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा. यू नो, शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व्स plus the losses, fictitious asset are taken over by the equity share. losses जो है equity shareholders लेते, reserve जो है वो भी equity shareholders लेंगे. so हमने ये सब assets को लिया. इसके बाद we will take the old value. ओल्ड वैल्यू को ले लेंगे, फिर जिसका भी रिवाइज वैल्यू दिया है वो रिवाइज वैल्यू कॉपी कर लेंगे. देन इट बिकम्स इजी. तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी हैव द एडवांटेज ऑफ
द कंप्यूटर, बिकॉज कॉपी पेस्ट ऑप्शन हम ब्लैक बोर्ड सॉल्विंग में नहीं कर सकते, वहाँ पे एक एक करके लिखना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन डू दिस। एंड यहाँ पे किसका न्यू वैल्यू दिया है, सबका बुक वैल्यू है एक्सेप्ट बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है। एक्स लिमिटेड का 28 lakhs एंड वाई लिमिटेड का 18,20,000। एंड सेम वे मशीनरी का दिया 31,50,000 एंड यहाँ पे इट इज 16 लाख। रेस्ट ऑल एसेट्स टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करो 28 लाख और 18,20,000 को, यू विल गेट 46,20,000। फिर 31,50,000 एंड 16 लाख को भी ऐड करो, यू विल गेट 47,50,000। 25,50,000 प्लस 18 लाख को ऐड करो, यू विल गेट 43,50,000। 9 lakh and 10 lakh को ऐड करो, you will get 19 lakh। 7,50,000 and 5,50,000 को ऐड करो, you will get 12,50,000। सब ये सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा, we will get the total, let us name it as A। तो ये हमारा A था, तो इसको मैंने A का टोटल करके लिख लिया। ऐड करो सबको, हाउ मच यू विल गेट, सबको ऐड करो, यू विल गेट 1 crore 1 lakhs। You will get 1 crore 1 lakhs and same way add all of this, you will get 67,70,000। दोनों को ऐड करो, you will get 1 crore 68,70,000। Now what we will do, less B all external liabilities taken over by external liabilities taken over by Z Limited in revised if given, otherwise book value। तो हम लोग जरा देख लेते हैं हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को छोड़ के बाकी सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। तो हमारे पास 12% डिबेंचर है और हमारे पास क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे वी विल राइट 12% डिबेंचर्स, 12% debentures and we have sundry creditors। so, इनका दोनों का नया वैल्यू दिया है। देखो क्रेडिटर का नया वैल्यू दिया है 6,50,000 एंड 5 lakh रिस्पेक्टिवली, 6,50,000 and 5 lakh respectively। and what has been given about the debenture, डिबेंचर बोलते हैं 10% डिस्काउंट। डिबेंचर जो जेड लिमिटेड लेके जा रहे हैं 10% डिस्काउंट में लेके जा रहे हैं। तो 5 लाख का 10% डिस्काउंट करो, यू विल गेट 4,50,000 एंड 3 लाख का 10% डिस्काउंट करो, 5 lakh minus 10%, 4,50,000। 3 lakh minus 10%, 2,70,000। सो यहाँ पे 10% डिस्काउंट करना मतलब वैल्यू कम करना। सो इधर हो जाएगा 4,50,000 और इधर हो जाएगा 2,70,000। नाउ टेक द टोटल, यू विल गेट द जेड लिमिटेड वैल्यू, दिस इज 7,20,000 एंड दिस इज 11,50,000। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा बी का। सो हाउ मच इट इज कमिंग, 11 lakhs and how much this is coming, 7,50,000। how much this is coming, 18,70,000। now we will want net asset। अभी हमें चाहिए नेट असेट वैल्यू, बिकॉज पीसी तो अलग है। नेट असेट वैल्यू हमें जो मिलेगा वो देखते, व्हाट इज द नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू इज ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो 1 crore 1 lakh से 11 lakh माइनस करो, यू विल गेट 90 lakhs।
67,70,000 में से 7,70,000 माइनस करो, यू विल गेट 60 lakhs. दोनों को आर करेंगे तो वी विल गेट 1,50 lakhs. वी विल गेट 1,50 lakhs. तो 1,50 lakhs मिलेगा. और अभी हमें पीसी पता है कितना है. पीसी कितना है? पीसी है the purchase consideration we know is given in the question 1,20 lakhs purchase consideration. I will show you this is given in the question कि दोनों business का the business of both the companies were taken over for a total price of 1 crore 1.2 crores. The purchase consideration total is given. How much it is? 1,20,00,000. अब ये 1,20,00,000 को कैसे डिवाइड करना है वो भी क्वेश्चन में बोला है. रेशो ऑफ नेट असेट वैल्यू. तो नेट असेट वैल्यू का जो रेशो है इट इज 90 लाख इज टू 60 लाख. जो रेशो है उस हिसाब से करना. इधर कितना जीरो सेम है? इधर इतना जीरो सेम है दोनों में. 9 और 6 ये रेशो कितना, अगर रेशो निकालने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑफ द जीरोस आर सेम. तो कौन सा रेशो में डिवाइड कर सकते हैं? 9:6 के रेशो में. और ये 9:6 भी छोटा हो सकता है. 3 के टेबल में 2s आर सॉरी 3 3s आर ना 3 3s आर 9 एंड 3 2s आर 6. 3 2s आर 6. तो इसको और छोटा कर सकते हैं. 3 3s आर एंड 3 2s आर. तो 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंपनीज है, एक्स लिमिटेड और हमारे पास है वाई लिमिटेड. उनको कितना पीसी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें तो टोटल पीसी पता है. तो क्या करेंगे, ये जो 1,20,00,000 है इसको 3 डिवाइड बाई 5. 3 डिवाइड बाई 5 कैसे मिला? 3 + 2 5. ये रेशो में हम दोनों में डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों का पीसी मिल जाएगा. कितना है करके इनटू 2 डिवाइड बाई 5. देखो कितना अमाउंट आता है. आपको एक्स लिमिटेड का कितना आएगा एंड वाई लिमिटेड का कितना आएगा. तो एक्स लिमिटेड का पीसी आएगा, दिस इज एक्स लिमिटेड का पीसी आ रहा है मुझे. हाउ मच आर यू गेटिंग? 72 lakhs आ रहे एंड वाई का मिल रहा है 48 lakhs. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,20,00,000. 72 lakhs plus 48 lakhs we will get 1,20,00,000. तो ये हमें मिल गया. इसके बाद हमें जानना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड. जेड लिमिटेड में कितना इक्विटी शेयर्स है वो जानना है. उसके लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्विटी शेयर जो है वो 20 रुपीज के प्रीमियम में 100 रुपीज. हमने जब इनको 1,20,00,000 दिया, जब 1,20,00,000 का पीसी मिला तो 120 रुपीज के हिसाब से मिला. 100 रुपीज शेयर का, 20 रुपीज प्रीमियम का. 100 रुपीज शेयर का, 20 रुपीज प्रीमियम का. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं कितना होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा, उसके लिए 72 lakhs जो कि एक्स लिमिटेड का पीसी है उसमें डिवाइड बाय 120 करो, हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. एंड सेम वे अबाउट वाई लिमिटेड इट इज 48 lakhs. 48 lakhs है तो 48 lakhs को डिवाइड बाय 120 करो, इसका भी नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. तो हाउ मच यू आर गेटिंग, जस्ट सी, यू आर गेटिंग 60,000 ईयर एंड यू आर गेटिंग
40,000 ईयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन Z लिमिटेड विल बी 1 lakhs। इसके हिसाब से ये पीसी में 1,20,00,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज वे टेकन ओवर फॉर अ टोटल प्राइस of 1.2 crores, 1,20,00,000. 1.2 crores is nothing but 1,20,00,000. That is already given, and it is also said that ये दोनों कंपनी के शेयर्स, बिकॉज ये तो टोटल दिया है, बोथ कंपनीज का पैसा एक साथ दिया है 1,20,00,000, तो कैसे डिवाइड करेंगे? इन द रेशियो ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर्स। कैसे डिवाइड करना है? नेट असेट वैल्यू कैसे डिवाइड करना है शेयर्स को? एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का ये जो 1,20,00,000 का जो है वो कैसे डिवाइड करते हैं? नेट असेट वैल्यू। तो नेट असेट वैल्यू हमें मिल गया, तो हमने उसका रेशियो निकाला। ये 90 into 60, इसका 5 0 कॉमन किया तो कितना होता है? 9:6। उसको छोटा किया तो 3:2। 9:3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3s और 2 कब आते हैं? 3 2s। तो उसके हिसाब से हमें 3:2 का रेशियो मिला और हमें ये अमाउंट मिला, और ये अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर्स मिला, बिकॉज शेयर्स 120 रुपीज में डिस्चार्ज हुआ है। 100 रुपीज का फेस वैल्यू, 20 रुपीज का प्रीमियम। तो इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? पीसी होने के बाद क्या पूछा है? पीसी होने के बाद जर्नल एंट्रीज पूछा है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। सो व्हाट इन दिस क्वेश्चन हमें जर्नल एंट्रीज पूछा है, तो हमें सीरियल नंबर चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, डेबिट क्रेडिट चाहिए। तो सीरियल नंबर, देन वी वांट, जो हम इससे पहले हमने सम्स में हमने वर्किंग नोट में जर्नल एंट्रीज बताया, यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली जर्नल एंट्रीज के लिए डेबिट, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रुपीस। तो नाउ फर्स्ट वन बिजनेस परचेज का एंट्री होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो परचेसिंग कंपनी होता है उसके जर्नल एंट्रीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यू कैन गेट इट इन द इन माय यूट्यूब चैनल। आप प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन लेक्चर और जर्नल एंट्रीज जो न्यू परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्री है वहाँ का लेक्चर अगर देखोगे तो यू विल गेट ऑल दिस। सो लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, कौन सा बिजनेस परचेस हुआ है? 2 liquidators of Y लिमिटेड। तो यहाँ पे कितना पीसी है? इसका 72 lakhs है और इसका 48 lakhs है। तो दोनों को मिलाकर हाउ मच इज द टोटल बिजनेस परचेस? कितने में किया है? 1,20,00,000 में। इसको बोलेंगे बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ये हो गया। इसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट एंट्री, असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर का एंट्री है। तो असेट्स एंड लायबिलिटी हमें एक एक कंपनी का करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। we can do it together also और we can do it separately also, because हमने यहाँ पे दोनों कंपनी का टोटल असेट एंड लायबिलिटी ले लिया है, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। लेट अस डू इट टुगेदर, दैट विल, नहीं तो क्योंकि अलग अलग मैंने एक सम किया है, अभी हम एक साथ वाला सम ले लेते हैं जिसमें हम एक साथ कैसे, अभी देखो Z लिमिटेड ने दोनों कंपनी का असेट्स को टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे डेबिट
कौन सा एसेट टेक ओवर किया है? ये सब एसेट्स टेक ओवर किया है. सो डेबिट, आई एम राइटिंग इट एज डेबिट. और कितने वैल्यू में टेक ओवर किया है? अब मैं कंबाइंड कर रही हूँ. यू कैन एक मतलब आप इंडिविजुअल कर सकते हो. एक्स लिमिटेड का सारा असेट लिया, एक्स लिमिटेड का सारा लाइबिलिटी लिया, और बिजनेस परचेस आप अलग अलग भी कर सकते हैं और हम लोग साथ में भी कर सकते हैं. टोटल जो जेड लिमिटेड है उसने दोनों कंपनी का असेट्स एंड लाइबिलिटीज लिया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू है, तो हम क्यों एक साथ नहीं करें? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दो चीज है, 12% डिबेंचर्स है लाइबिलिटी में, और हमारे पास है 2 क्रेडिटर्स, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एक चीज यहाँ पे लिखेंगे 2 बिजनेस परचेस. बिजनेस परचेस डेबिट में था, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट में था. अब टेक ओवर करते हमने, सॉरी यार मैंने गलत जगह में लिखा, डेबिट बोल के मैंने क्रेडिट में लिखा इधर. अभी हम लोग जो लाइबिलिटी है वो लिख लेते हैं. लाइबिलिटी टोटल कितना है, तो ये मिल गया हमें. तो यहाँ पे वी विल राइट बिजनेस परचेज कितना है. बिजनेस परचेज दोनों का मिला के है इतना. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं वेदर इट इज गेटिंग टैलीड. देखो डेबिट और क्रेडिट सेम है क्या, दोनों को ऐड करके देखो डेबिट और क्रेडिट सेम है क्या. कितना आ रहा है, 7,20,000 प्लस 11,50,000 प्लस 1,20 lakhs. It is coming how much, 1,38,70,000, 1,38,70,000. और हमारा टोटल असेट तो ऑलरेडी हमारे पास है. टोटल असेट इज 1,68,70,000. हमारा डेबिट ज्यादा है, हमारा डेबिट ज्यादा है और हमारा क्रेडिट कम है. बट एज पर लॉ बोथ शुड बी सेम. मतलब हमने क्या किया, हमने ज्यादा असेट लिया, ज्यादा वैल्यू का असेट लिया, और हमने पे कम किया. हमने देखो ज्यादा वैल्यू का असेट लिया और पे कम किया, तो हमें ये कंपनी को फायदा हुआ. तो क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट में आता है. तो हम क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व. हमारा डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और हमारा क्रेडिट का अमाउंट कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट में आ रहा है. तो ये डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे. जब भी क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट कम, तो वो डिफरेंस को हम गुडविल बोलते हैं. मतलब बिजनेस एक्स्ट्रा पैसा, परचेसिंग कंपनी एक्स्ट्रा पे करता है फॉर द रेप्यूटेशन, बट यहाँ पे परचेसिंग कंपनी ने कम पे किया है. तो 1 करोड़ कितना था ये, 1,68,70,000. तो हमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमें 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है. हमें कितना, 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे 30 लाख. ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. इधर बोलेंगे बी assets and liabilities taken over, assets and liabilities taken over by Z Limited, taken over by Z Limited, taken over by Z Limited. तो ये this one is done, this one is done. Now what we will do, now we will go to the next entry. नेक्स्ट एंट्री में ये जो लिक्विडेटर्स है, देखो बदले में क्या दिया,
वो भी एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं कि जेड लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को क्या पे किया, जेड लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या पे किया। तो ये जो लिक्विडेटर्स है ये क्रेडिट में था, अभी डिस्चार्ज ऑफ पीसी का हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो ये जो लिक्विडेटर जो क्रेडिट में है, अब हम डेबिट में लिखेंगे लिक्विडेटर्स एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये भी हम एक साथ एंट्री पास कर सकते हैं। और लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, दोनों को एक साथ कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। इतना कंबाइन एंट्री पास किया और बदले में क्या दिया, बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। बदले में क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो कैपिटल दिया ये प्रीमियम में दिया। कैसे दिया, प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना शेयर्स टोटल दिया, देखो यहाँ पे हमारे पास है 1 लाख शेयर से 100 रुपीज का, 1,60,000 एक्स को, 40,000 वाई को। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 60,000 एक्स का, 40,000 वाई का। तो हम तो एक साथ कर रहे, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 72 लाख है एक्स का और वाई का है 48 लाख। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख इंटू 100, 1 लाख शेयर इंटू 100। और प्रीमियम कितना है, 1 लाख शेयर इंटू 20 रुपीज का प्रीमियम। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ये 1 करोड़ है और ये 20 लाख है। तो ऐसे डिस्चार्ज किया है पीसी को। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज या सेटल्ड, जैसे लिखना है वी कैन राइट। इसके बाद डिबेंचर सेटल किया है, इसके बाद क्या किया है, डिबेंचर सेटल किया है। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स का एंट्री पास करेंगे। 12% डिबेंचर्स कैंसल हो जाएगा, 12% डिबेंचर्स, 12% debentures account. Let us see the entry what they have given, that also let us read. यहाँ पे बोला गया है कि 12% डिबेंचर्स के बदले में, 12% डिबेंचर्स इधर था, इसके बदले में क्या मिल रहा है, 14% डिबेंचर्स। क्या मिल रहा है, 14% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 14% डिबेंचर्स मिल रहा है डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% डिस्काउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 5 लाख पे 10% एंड 3 लाख पे 10%। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना डिबेंचर है, 7,20,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कितना डिबेंचर है, 7,20,000। इसके बदले में क्या क्रिएट हो रहा है, 14% डिबेंचर्स क्रिएट हो रहा है, 14% डिबेंचर्स अकाउंट। और डिबेंचर कितना परसेंट डिस्काउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो ये जो वैल्यू है 90 रुपीज का वैल्यू है। तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। तो जरा वर्किंग में देखो, वर्किंग नोट में ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए 7,20,000 डिवाइड बाय 90, कितना अमाउंट आ रहा है, बिकॉज 100 रुपीज का शेयर है, हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिवाइड बाय 90 किया तो यहाँ पे 8,000 डिबेंचर्स है, 8,000 14% डिबेंचर्स, 8,000 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच
कितने में दे रहे हैं? ₹90, इशूड एट ₹90 ईच। तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर हम भले हम दे रहे हैं ₹90 में, पर वो है तो ₹100 का ही ना। तो 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 100 विच इज कमिंग टू 8 lakhs, which is coming to 8 lakhs। और ये जो डेबिट कम दिख रहा है ना, डेबिट कम दिख रहा है, वो क्या है? वो हमें लॉस हुआ है बिकॉज हमने क्या किया, हमने डिबेंचर्स 100 का है पर 90 में इशू किया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट हो गया? 80,000 का। तो बोलेंगे बीइंग डिबेंचर सेटल्ड, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड। ये भी हो गया। लास्ट एंट्री हमने अमाल, यहाँ पे एक्सपोर्ट, देखो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो एक्सपोर्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको और 3 साल मेंटेन करना है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दोनों का मिला के 3 लाख, इट इज 6 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अमालगमेशन, दिस इज अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। कितना दोनों का मिला के? इट इज 6 लाख। दोनों का मिला के इट इज 6 लाख। इट इज हाउ मच? 6 लाख। 3 लाख प्लस 3 लाख। तो इसको बोलेंगे बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन्ड, बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन्ड। तो ये भी हो गया। तो सारा जर्नल एंट्रीज हो गया। अब जर्नल एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने बोला है। तो बैलेंस शीट एज ऑन कौन सा डेट है? अमालगमेशन, यहाँ पे कौन सा डेट दिया है? कुछ भी डेट नहीं दिया। दे हैव नॉट गिवन एनी डेट। सो बैलेंस शीट एज ऑन तो नहीं मालूम क्या है, बट इट इज बैलेंस शीट ऑफ विच कंपनी? बैलेंस शीट ऑफ Z लिमिटेड। तो लेट अस इंसर्ट द कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर चाहिए, फिर हमें नोट्स टू अकाउंट एंड रुपीस। Let us adjust this. So particulars, notes to account and rupees. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट, इसमें पहला वाला नोट टू अकाउंट जो है उसमें हम शेयर कैपिटल के लिए बनाएंगे। शेयर कैपिटल कितना है? सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना, बिकॉज दैट इज गिवन 5 करोड़, 5 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100।
100 ईच। वैसे इसको हमें टोटल में तो नहीं लेना है 5 करोड़, लेकिन इशूड एंड पेड अप कितना है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, एक को 60,000 एक को 40,000, हमने टोटल शेयर दिया 1 लाख, ये हमने इधर भी लिखा देखो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100, ऊपर हमने वर्किंग नोट में भी फाइंड आउट किया 1 लाख दोनों को मिला के शेयर जेड लिमिटेड ने इशू किया है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 करोड़। इसके बाद अभी हमें निकालना है सेकेंड वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे पास कौन सा रिजर्व है, जरा हमारे जर्नल एंट्रीज में देखो, न्यू कंपनी का, हम न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, इसका रिजर्व 30 लाख, फिर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 लाख। एक चीज कर सकते हैं, ये जो डिस्काउंट है ना, ये हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्काउंट है हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। दिस इज अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। और दूसरा उसको अलग से भी बता सकते हैं, नॉन करंट असेट में, फिक्टिशियस असेट को हम अदर नॉन करंट असेट में बताते हैं ना, तो वहां पे भी बता सकते हैं। तो हम एक सम मैंने किया है जहां पे मैंने क्या किया, अलग से डिस्काउंट ऑन इशू बताया। अब आज के समय में ये वाला वैरायटी भी तुम लोग को ऑप्शन है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ये डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं। तो लेट अस सी हमारे पास कौन सा रिजर्व है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है फॉर 30 lakhs, कैपिटल रिजर्व 30 lakhs, एंड हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम यहाँ से माइनस करके भी बता सकते हैं या अलग से भी बता सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख है, इसमें से हम 80,000 डिस्काउंट को माइनस करके दिखा सकते हैं, या तो उसको अलग से भी बता सकते हैं। एनीवे वी कैन डू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19,20,000 ऐसे करना है, या वी वांट टू शो इट लाइक वी ऑलवेज डू, ऐसे भी कर सकते हैं। लेट अस डू इन द अदर वे ओनली, ऐसा माइनस करके भी कर सकते हो, ऐसा किया तो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 lakhs। फिर इधर एक और चीज है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज 6 लाख, लेकिन ये तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा बिकॉज ये नेगेटिव रिजर्व है, डेबिट में इसका अमाउंट। ये दूसरा है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में हम कितना दिखाएंगे, 6 लाख। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री इसका पास किया है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 लाख। तो इधर लिखेंगे हम 50 लाख, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पी नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स लिखना है, हमारे पास 14% डिबेंचर्स है। 14% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 8 लाख। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो 14% डिबेंचर्स 8 लाख। इसके बाद वी हैव व्हाट वी से करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ ट्रेड पेएबल है, सिर्फ क्रेडिटर है। और देखो जब हमने सब असेट्स एंड लाइबिलिटी को टेक ओवर किया तो यहाँ पे हमें डिबेंचर को छोड़ के सिर्फ क्रेडिटर है 11,50,000 का, तो वही इधर लिखेंगे 11,50,000। इसको आर करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा लाइबिलिटी का। फिर इधर नेक्स्ट वन इज असेट्स। ओ सॉरी मैंने नॉन करंट असेट लिख दिया गलती से, नॉन करंट लाइबिलिटीज। थैंक यू, नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे असेट्स, और असेट में भी दो है, नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। बट इंटैंजिबल हमारे पास कोई असेट नहीं है। देखो टेक ओवर ऑफ असेट्स में देखो हमारे पास इधर गुडविल है क्या, मतलब इंटैंजिबल हमारे पास कुछ नहीं है। टैंजिबल हमारे पास दो है, तो नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ेगा टैंजिबल के लिए 3, और नोट्स टू अकाउंट में गए थर्ड वन टैंजिबल असेट्स। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है। दोनों का अमाउंट देख लेते हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी 46,20,000 and 47,50,000। 46,20,000, 46,20,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी है 47,50,000। दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 93,70,000। इधर लिखेंगे 93,70,000। इंटैंजिबल तो कुछ है ही नहीं, नील। फिर हम यहाँ पे एक और चीज, अदर नॉन करंट असेट्स, ये क्या है, ये डिस्काउंट ऑन इशू है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 80,000 ना। देखो इधर हमने कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000। तो ये होने के बाद नाउ वी कम टू द करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्वेंट्रीज, फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, और हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यही तीन है। जरा चेक करते हैं कौन सा असेट है। प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के हमारे पास स्टॉक है, डेटर है एंड कैश बैंक है। वही हमने लिखा, स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री, डेटर को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, और कैश बैंक को बोलते हैं कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट। सो विद दिस
हमारा बैलेंस शीट हो गया. Now what is the total coming? See, total क्या आ रहा है? 1,69,50,000 असेट साइड और लाइबिलिटी साइड भी तीनों को ऐड करो. यू शुड गेट 1,69,50,000. with this with this I'll highlight this. This is with this our sum is done. Thank you very much everyone.